rest are the areas where you walk in victory. वो क्षेत्र जहां पर आप विश्राम में हो, वो क्षेत्र है जहां आप जय में चलते हो. Think about this. जब वो storm आया तो यीशु ने पिता से प्रार्थना नहीं करी. When the storm came, Jesus did not pray to the Father. He spoke to the storm. उसने तूफान से बात की. Because he knew he has dominion over the storm. क्योंकि वो ये जानता था कि उसके पास अधिकार है तूफान के ऊपर. Don't we pray like the disciples so many times? क्या हम कई बार चेलों की तरह प्रार्थना नहीं करते? Don't you care that we perish? ओ प्रभु, आपको चिंता नहीं है हमारी, हम नाश हो रहे हैं. How would you know that you have genuinely entered into rest? Every worry in that area will stop in your life. आपको कैसे और कब मालूम होगा कि आप सच में विश्राम में प्रवेश कर चुके हो? जब उस क्षेत्र में हर एक चिंता आपके जीवन को छोड़ के चली जाएगी. Amen. The day God spoke to me, you will never lack, is the day every financial worry stopped in my life. जिस दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की कि तुम कभी कमी घटी I've नहीं entered देखोगे. into rest into that area. मेरे जीवन में मैं आर्थिक क्षेत्र में विश्राम में आ गया. I know I'm never gonna lack. मुझे पता है मैं कभी कमी घटी नहीं देखूंगा. Why? क्यों? Because I've entered into rest in that area. क्योंकि मैं उस क्षेत्र में विश्राम में प्रवेश कर चुका Now हूं. what am I doing? I'm laboring अब मैं in the मजदूरी कर रहा हूं. word so that I can enter into the rest in the area of my health. So I would also know that. So in every area we start to one after the other enter into rest. अब मैं वचन में मजदूरी कर रहा हूं कि मैं अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्राम में आ जाऊं. एक एक करके अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम विश्राम में प्रवेश कर जाएं. Okay, one more definition of rest. As I was praying, the Lord just revealed this to me. विश्राम की एक और Rest परिभाषा. in today's language, आपको बहुत easily समझे. आज की Rest means perfect peace. विश्राम का अर्थ है सिद्ध शांति. What? Perfect. Peace सिद्ध. is not absence of sound. शांति हल्ले गुल्ले का ना होना नहीं है. लोग कहीं जाते हैं ना तो जहाँ हल्ला वो कहते हैं When people go to some place and there's sound, there's noise, they say, बड़ी शांति है इस जगह. oh, there's so much peace here. You know what's amazing? आपको पता है अद्भुत क्या है? सबसे ज्यादा हल्ला होता है यहाँ पे. लोग कहते हैं बड़ा peace है. This place is full of noise and people say there's so much peace. Because there. peace क्योंकि शांति is not the decibel of sound. Peace is a person called Jesus. क्योंकि शांति कितनी जोर से आवाज हो रही है वो ना होना नहीं है. शांति एक व्यक्ति है जिसका शांति एक व्यक्ति इसका नाम यीशु है. The moment you behold him, you put your eyes on him, जब आप every storm ceases. जब आप अपनी आंखें उस पर लगा लेते हो हर एक तूफान शांत हो जाता है. Because there aren't only storms that are raging outside of you, there are many storms raging within you. क्योंकि कई तूफान ऐसे हैं जो आपके बाहर नहीं लेकिन आपके अंदर उठते और बैठते हैं. And you have tried, oh Rabba Baba, oh thank और you आपने Lord. try कर You've लिया, tried Rabba all Baba. of that and it hadn't worked धन्यवाद because लेकिन वो सब काम नहीं किया. क्योंकि you're not trusting in the finished work of Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के समाप्त हो चुके काम पर भरोसा नहीं कर रहे हो. You are okay. The Bible says बाइबल कहती है it is not by works that we are saved. हमारा उद्धार कामों के द्वारा नहीं हुआ. But later Bible says, लेकिन बाद में बाइबल कहती है. okay, let's see that scripture. हम ठीक है? वचन देखते हैं. बहुत टाइम है. आज भी फास्टिंग प्रेयर है, अभी खत्म नहीं हुई है. Today is also fasting prayer. It's not over yet. Okay, so put Ephesians 2:8. ठीक है? हाँ? पेट में गुड़गुड़ तो नहीं हो रही है? Okay, ठीक है. All right. पेट में गुड़गुड़ हो तो उसको बोलना be still. Okay. For by grace you have been saved through faith and not of yourself. इस लाइन को हाईलाइट कर दो और 100 बार बोलो एक दिन में हर रोज. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ. ये तुम्हारी ओर से नहीं है. Underline this and say this 100 times a day. You have no idea how many times I think every day. आपको कोई अंदाजा नहीं मैं रोज कितनी बार सोचता हूँ. God, प्रभु, if you would have not picked me अगर आपने मुझे ना उठाया होता in my life, अपनी जिंदगी में, it's not 99% him and 1% me. 99%
वो और 1% मैं It's नहीं हूँ, all of Him. वो पूरा का पूरा वो है. And if He would not have given me this privilege to serve Him, और अगर उसने I could मुझे have never ever obtained it by any of my talents, by any of my sacrifices, by any of my godliness. अगर उसने मुझे ना चुना होता अपने पूरे टैलेंट, अपने पूरे बलिदानों और अपने पूरे ईश्वरीय कामों से भी मैं यहाँ ना पहुंचता. Amen? आमेन. You know, a man can do all things right, live holy, and thinks he is, if God will ever visit the capital city of New Delhi and if God has to choose somebody, it will be him. हो सकता है एक मनुष्य एक धर्मी जीवन जी रहा और सब कुछ सही कर रहा और उसको लगे कि अगर प्रभु यीशु मसीह दिल्ली आएगा तो वो मुझे ही चुनेगा. And then God bypasses him and chooses somebody, और फिर परमेश्वर उसको उससे आगे निकलकर किसी और को चुन लेता है. someone whom everyone thinks is good for nothing. कोई ऐसा जिसको सब सोचते हैं तो किसी काम का नहीं है. That's who he is. ये है वो. It is not of ourselves. हमारे खुद के कामों से नहीं हुआ, It is not of ourselves. हमारी खुद की वजह से नहीं हुआ, It is not of our prayers. हमारी It is प्रार्थनाओं की not नहीं, of our giving. हमारे It देने is की नहीं, not of any righteous deeds that we have done. किसी भी अच्छे But काम से it हमने किया is नहीं. a gift of God. लेकिन ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है. The day you realize it, every religion will leave you and you will be able to give so much grace to others. जिस दिन आप ये जान गए हर धर्म आपको छोड़ के चला जाएगा और आप दूसरों को अनुग्रह दे पाओगे. The day I think I have done something that qualified me for this ministry is the day I will be disqualified. जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि मैंने कुछ किया था जिसकी वजह से मैं इस सेवकाई के लिए योग्य बना हूं, उसी दिन मैं अयोग्य ठहरा दिया जाऊंगा. Are you getting it? It is not of ourselves. हमारी वजह से नहीं हुआ. Lay down every burden to be somebody in the kingdom of सारा God. बोझ नीचे रख दो कि कुछ होना है, मुझे राज्य में कुछ बनना है. I have to prove somebody. I do this. And साबित करना 500 है. people fall. मैं यूं करूंगा और 500 लोग गिर जाएंगे. So yeah, let's. For by grace you have been saved through faith, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, and not of yourself. और ये तुम्हारी ओर से नहीं, It is a. वरन It is a. परमेश्वर It का is a- तोहफा है. ये परमेश्वर का गिफ्ट है. उद्धार क्या है? व्हाट इज सैल्वेशन? अगर ये समझ में आ गया आपको तो सारे फियर चल जाएंगे. क्योंकि लोग बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है उद्धार दे दिया परमेश्वर ने तो क्या सब हो गया है? If you understand this, all fear will leave you, because people say, what do you think? God has given you salvation, so it is done. बाइबल कहती है Bible says, जो गिफ्ट परमेश्वर एक बार देता है उसे वापस नहीं लेता. the gift that God gives one time, He does not take it back. When salvation is not of yourself, जब उद्धार आपकी ओर से है ही it नहीं, is not of yourself. अरे आपकी ओर से नहीं है How वो, did it became about yourself after some time? तो कुछ समय बाद आपकी ओर से कैसे बन गया, आपकी तरफ से कैसे हो गया वो? It is not of yourself. आपके बारे में है ही नहीं उद्धार. It is not of yourself. आपकी ओर से हुआ ही नहीं है उद्धार. आप सोचो मैं किसी के घर जाऊं, आपका बर्थडे है, मैं आपके घर आया, Think about it. Your मैंने birthday, I आपको come to बढ़िया your सा house. गिफ्ट दिया.